Money Matters. Welcome to this edition of Money Matters, a financial literacy program on our official YouTube channel and other digital platforms. A program in which we bring you information on personal finance like savings, investments, borrowing and taxations. We also discuss on economic matters of the country. Today's topic is Pradhan Mantri Awas Yojana. You can send in your queries regarding this topic on our email ID moneymatters.air@gmail.com. I'm Paul Thotham and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मनी मैटर्स में आपका स्वागत है। देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़े इस कार्यक्रम में हम प्रतिदिन एक निर्धारित विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है प्रधानमंत्री आवास योजना, जैसा कि मेरे को एंकर पॉल थॉटम ने बताया। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपके सवाल भी शामिल करते हैं। सवाल भेजने के लिए हमारा ईमेल आईडी है moneymatters.air@gmail.com। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ जयंता दास। जयंता दास, नमस्कार। नमस्कार। मनी मैटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। और अब आज की आर्थिक खबरों के साथ हैं पॉल थॉटम। In stock and bullion market news today, the Sensex at the Bombay Stock Exchange declined 304 points or 0.7% to end the year at 41,254. The Nifty at the National Stock Exchange lost 87 points or 0.7% to 12,168. In the broader market, the BSE Mid-Cap Index ended flat, but the Small Cap Index rose 0.4%. Key indices at other Asian markets in Japan, Hong Kong, South Korea and Singapore were closed for year-end holiday. But China's Shanghai Composite Index rose 0.3%. In Europe, London's FTSE 100 had shed 0.4%. France's CAC 40 was trading flat and Germany's DAX had lost 0.7% in intraday trade. Back home, gold jumped 256 rupees to 39,985 rupees per 10 grams at Delhi's bullion market. Silver also climbed 494 rupees to 48,313 rupees per kilo. Jayanta, before we start our discussion on Pradhan Mantri Awas Yojana, I think the most basic question that I would like you to explain to us and our listeners is, what is Pradhan Mantri Awas Yojana? What is this scheme? If you can tell us. Well, Paul, to put it in a simple manner, I think it's one of the largest schemes for housing in the world, where it targets, the objective of the scheme is housing for all, and the target is around 2 crore houses to be given by year 2022, 31st March. So that's when the scheme ends. But it's a very ambitious program and completely targeted in a transparent manner with a huge IT-enabled service support system to enable the transparency to the last mile. So I guess very unique project in terms of what it offers on the ground, and also the target it sets to be, because all this while all government schemes we have seen, there are income criteria, there are social welfare criteria while beneficiaries are selected. This scheme goes beyond that. I mean, we have transgenders who have been included as part of the beneficiaries. We have widows who have been included as part of the beneficiaries. And most of all, personally, I feel when I do a thorough analysis of the scheme, this scheme to the great extent represents women empowerment, because specifically for the EWS and the LIG category, at least one of the co-holders should be a woman. That's a necessity role. So not only it's objective in terms of having a house by year 2022, it also brings in the role of a woman empowerment to a great extent, specifically when it comes to the ownership of an asset. For most of us, asset as important as your own house. So I guess both socially as well as in terms of economic terms, this project goes a long way in establishing India's overall objectives for its Millennium Development Goals, number one. Number two, the other part of the scheme is, given the government's intention of, executing the scheme at a pan-India level, which it is doing right now quite robustly, on the demand side, it's created a huge amount of jobs on the ground. It is also to a great extent, released a lot of infrastructure which were being created, inventory specifically,
in the low income category but were unsold till this point of time. But allowing this scheme now, most of these inventories, or if not most, at least part of these inventories are being now used for this scheme. So I guess both, it's quite a win-win situation in terms of what it offers on the ground. जी, निसंदेह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, और सभी को घर 2022 तक का जो लक्ष्य है सरकार का, वो उस दिशा में सरकार आगे भी बढ़ रही है। तो ये सबसे पहले हम यहाँ ये जानना चाहेंगे जनता आपसे कि इस योजना का लाभ कौन लोग उठा सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले तो सरकार ने एक इनकम लेवल डिफाइन किया है, जहां पे 3 लाख तक जिनको इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस माना जाता है, फिर 3 से 6 लाख तक एक LIG लो इनकम ग्रुप माना जाता है, और फिर 6 से 9 लाख मिडिल इनकम ग्रुप 1, और 9 से लेके 18 लाख, या 6 से 12, 12 से लेकर 18 लाख जो मिडिल इनकम ग्रुप 2, तो 12 से 18 जो आखिरी जो स्थिति है। तो ये 4 जो मेन इनकम क्लस्टर्स है, इनको ऊपर फोकस करके है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, अगर आप विडो है, अगर आप ट्रांसजेंडर है, अगर आप SC/ST कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, अगर आप स्लम में रहते हो, तो स्लम का भी डेफिनेशन सरकार ने किया है, आप इमीडिएटली एलिजिबल हो जाते हैं इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए। लेकिन प्रधान रूप से ये एक लिस्ट निकलता है सरकार का जी, और उसमें उस लिस्ट को निर्भर करते हैं अगर आपका नाम सोशियो इकोनॉमिक सेंसस में है कि नहीं है, जो 2011 में एक पेपरलेस सेंसस सरकार ने किए थे, एकदम जाके डिस्ट्रिक्ट, ग्राउंड, ब्लॉक, गांव का लेवल तक वो सेंसस हुए थे, तो उसका साथ मैच करके गवर्नमेंट फिर बेनिफिशियरीज का नाम निकालते हैं। तो हमारा श्रोताओं के लिए अगर एक थोड़ा सा आप हमें समय देंगे तो हम थोड़ा अगर बताना चाहेंगे कि एक तो आपको अप्लाई कैसे करना है इसमें, एंड आई थिंक पॉल्स नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आल्सो दैट। सबसे पहले तो आपको जैसे शुरुआत में हमने जब डिस्कशन किए थे, हमने बताए थे कि दिस स्कीम हैज अ ह्यूज IT एनेबल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इंटरनेट द्वारा इस स्कीम को ओवरऑल एग्जीक्यूट करने का और IT का द्वारा स्कीम में ट्रांसपेरेंसी ले आने का एक मूल ऑब्जेक्टिव स्कीम में रहा। तो इसमें आपको 2 तरीका है। एक तो अगर आपका पास इंटरनेट का एक्सेस हो, कहीं पे भी अगर आप हो, वहां पे जाकर आप एक्सेस करें, और प्रधानमंत्री आवास योजना का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मेरे ख्याल से इट इज कॉल्ड www.pmamis.gov.in। I just repeat that, and then even I'll request Vishal also to अगर आप हिंदी में भी बताएं। So friends, it is www.pmamis.gov.in. This is the official वेबसाइट फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री आवास योजना का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट पर जाकर के इसको देखना होगा। इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, www वेबसाइट का एड्रेस हम आपको बता रहे हैं एक बार फिर से, www.pmamis.gov.in। बिल्कुल। तो इसमें जाके फिर आपका एक 2 पेज का एक एप्लीकेशन फॉर्म है, सिंपल। पहला पेज में आपको अपना आधार नंबर आपको डालना है, और उस आधार नंबर डालने के बाद गवर्नमेंट आपको ऑथेंटिकेट करेंगे सर्च करके जी। उसके बाद सेकंड पेज में आपको अपने डिटेल्स जो भी गवर्नमेंट मांग रहा है, वहां पे आपका नाम, पिता का नाम, आपका जहां पे पता, आप जहां पे रह रहे हो, आपका तहसील, गांव वगैरह वगैरह, कुछ इनकम डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, कुछ परिचय पत्र मांगेंगे। If you don't mind, I like to interject. You had said that socio-economic census में आपका नाम होना चाहिए। नहीं, मैंने ये बताया कि सोशियो इकोनॉमिक सेंसस को द्वारा ये लिस्ट को अलग से वैलिडेट करके निकालते हैं। मेरा नाम नहीं है उस पे, हाउ डू आई कम टू नो? मुझे वही मैं बता रहा हूँ। आप मेरे को पहले एप्लीकेशन प्रोसेस के बाद फिर सेकंड स्टेप में आपका जो सवाल है वो और आपका स्पष्ट रूप में सामने आ जाएंगे। तो एप्लीकेशन जब कंप्लीट हो जाएगा, आपको वहां पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है। अब 2 तरह का PMAY है, एक PMAY अर्बन, एक PMAY ग्रामीण। तो आप जहां पे रह रहे हो उस बेसिस में आप वहां पे दोबारा जब आपको देखना है, लिस्ट जारी हो, क्योंकि अब तक ऑलरेडी 2 लिस्ट जारी हो गया, 2019-20 का भी लिस्ट अभी आ गया है। तो आपका पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो लिस्ट खोल के आपको रजिस्ट्रेशन का नंबर के द्वारा आपको सर्च करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि कुछ लोगों के पास रजिस्ट्रेशन नंबर है नहीं, तो वो कहां से जाए अपना नाम ढूंढने, हालांकि उसने भी अप्लाई कर चुके हैं। तो वहां पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर PMAY ग्रामीण का अगर हम बात करें, तो वहां पे आपको बहुत अच्छा ड्रॉप डाउन मेनूज है, जहां पे आपको पहले आपका राज्य मिलेंगे, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको अपना तहसील मिलेगा, तहसील के बाद आपको गांव का नाम मिलेंगे, और गांव का नाम में जब आप क्लिक करेंगे, उस गांव में जितना भी बेनिफिशियरीज सरकार का तरफ से आए, उनका सारे डिटेल्स, माता पिता का नाम वगैरह वगैरह सब आ जाएंगे। प्रायोरिटी लिस्ट में क्या कहाँ है वो लोग, और फिर उस नाम पे जाके एंटर करेंगे तो और भी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे
इंक्लूडिंग जो आप सबमिट किए हैं। तो इस लेवल तक डिटेल्स अवेलेबल है कि आप सक्सेसफुल बेनिफिशियरी हो कि नहीं। तो आपके मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाने के लिए क्या मैं लाभार्थी हूं या नहीं हूं, इसकी तस्दीक करने के लिए, इसको निश्चित करने के लिए मुझे पहले वेबसाइट पर जाकर के देखना होगा। पहले तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। पहले अप्लाई करना होगा। आपको अपना एक प्रोजेक्ट जहां पे भी आप अगर आप दावेदार बनना चाहते हो मकान का, तो आपको एक सिंपल 2 पेज फॉर्म है, उसको दौर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फिर जब आपका नाम आएंगे, आप बेशक जाके जिस स्थिति में हो, अगर आप नया घर खरीदना चाहते हो या कोई आपका पास जमीन है, आप एक नया घर खड़ा करना चाहते हो, तो वहां पे जाके आप बैंक से बेशक लोन लोगे, जहां पर भी लोगे, तो आपका इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के द्वारा आपके इंटरेस्ट में सब्सिडी मिल सकता है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो तो आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी मिल सकता है, जहां पे 2.2 लाख तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सरकार आपको प्रबंध कराएगा इस वक्त। और अभी हाल ही में सरकार ने जो ये मिडिल इनकम ग्रुप के लिए MIG 1 और MIG 2 कैटेगरी में भी कारपेट एरिया बढ़ाने की बात कही थी घरों का, उससे कितने लोगों को लाभ और बढ़ देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किए है, क्योंकि फिलहाल जो कारपेट एरिया का जो लिमिट्स है, खास करके ईडब्ल्यूएस और LIG कैटेगरी में 30 अथवा 60 स्क्वायर किलोमीटर तक बात चल रहा है। और सिमिलरली ईडब्ल्यूएस और LIG CLS कैटेगरी में भी 30 रिवाइज इंस्ट्रक्शन का तरफ बात किया जा रहा है। जो MIG 1 और MIG 2 है, वहां पे 160 से बात किया जा रहा है, शायद उसको 200 स्क्वायर मीटर कराया जाए। 200 स्क्वायर। लेकिन साथ में राज्य को भी थोड़ा छूट दिया गया कि अगर राज्य चाहते हैं तो इसको सीलिंग को थोड़ा और आगे कर सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है। अब जैसे बॉम्बे जैसे शहर में आपका ज्यादातर जो स्लम डवेलर्स है वो 15 या 20 स्क्वायर मीटर में रहता है, शायद उससे भी कम में रहता है। लेकिन जो केरल में है या जहां पे जमीन थोड़ा ज्यादा उपलब्ध होता है, जैसे मध्य प्रदेश में, वहां पे जरूरी नहीं है कि अगर 20 स्क्वायर मीटर में आप सीलिंग डालेंगे तो वहां पे काफी सारे लोग मिलेंगे। वहां पे गरीब लोग शायद 40-50 स्क्वायर मीटर जगह में रह रहे हैं। तो वो राज्य के ऊपर भी निर्भर करता है सीलिंग क्या रहेगा। लेकिन मुद्दा सवाल यह है कि जब सीलिंग आप बढ़ाते हो तो बेनिफिशियरीज और आने का चांसेस बढ़ जाते हैं, उसकी व्यापकता बढ़ती है, योजना का दायरा बढ़ता है। बिल्कुल। तो किसी को अगर आप छांटने का कोशिश करोगे कि भाई इनके पास तो 20 की जगह 30 स्क्वायर मीटर जगह है, तो ये बेनिफिशियरी नहीं बन पाएंगे, तो मैं मानता हूं गलत है, चाहे उसका SCC से भी नाम हो। तो यहाँ पे सरकार का एक अलग से चिंतन है कि भाई इसमें बेनिफिशियरीज को और हम अगर इंक्लूसिव करना चाहते हैं सही रूप से, जमीनी रूप से, ये नहीं कि आप कहीं पे भी दिल्ली में बैठ के सोच रहे कि हो जाना चाहिए, स्टेट लेवल का भी इंटरवेंशन है। और एक चीज बार बार शुरुआत से जो मैं कह रहा हूं, PMAY प्रोजेक्ट में तहसीलदार तक, गांव का विलेज पंचायत तक एक कंट्रीब्यूशन रहता है कहीं ना कहीं, क्योंकि उनका SCC का जो लिस्ट बना है उनका कंट्रीब्यूशन और उनका एडवाइस से बना है जी। तो बेनिफिशियरी टारगेटिंग वगैरह वगैरह सब उस लेवल तक है। और सेंटर और स्टेट का प्रोएक्टिव पार्टनरशिप के द्वारा ये स्कीम हो सकता है और हो भी रहे। और एक बड़ा माइलस्टोन जो हम शाबाशी के साथ कह सकते हैं जो हासिल हुआ है वो ये है कि अभी तक 1.2 या 1.12 करोड़ के करीब हाउसिंग का एप्लीकेशन फॉर्म्स आया हुआ है बेनिफिशियरीज का, उनमें से 1 करोड़ के करीब सैंक्शन हो चुका है। तो इट्स अ मेजर माइलस्टोन है। आउट ऑफ 2 करोड़। बिल्कुल, आउट ऑफ 2 करोड़। दैट्स 50% डन एंड यू गॉट 2 इयर्स लेफ्ट। बिल्कुल, तो अभी 2 साल और रह गया। तो दिस इज अ ह्यूज माइलस्टोन व्हिच हैज बीन अचीव्ड। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि पूरा विश्व में इस स्तर का हाउसिंग फॉर ऑल एक बहुत बड़ा चीज है। अब देखिए, टॉयलेट बनाना, सिलेंडर प्रोवाइड करना, वो भी एक स्कीम था जहां पे सरकार ने अपना कहीं ना कहीं अपना ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखा के लोगों तक घर पहुंचाए। लेकिन घर खड़ा करना बहुत बड़ी बात है और सपना होता है, हर एक का सपना होता है कि मेरा अपना सिलेंडर पहुंचाना। वो तो सरकार ने एक कहीं ना कहीं सक्सेस हासिल करके परफॉर्मेंस का बहुत अच्छे से प्रदर्शन किया है। लेकिन उससे आगे बढ़ के किसी को घर दिलवाना, खास करके जिसको आप टारगेट कर रहे हो, और साथ में ये भी है खास करके गांव में ये कहा गया है कि जिनका पास पक्का घर नहीं है वो इमीडिएटली इसमें बेनिफिशियरी बन सकता है। तो मतलब ये भी एक मुहिम चलाया जा रहा है कि जहां पे कच्चा घर जिनका पास है उनको कैसे रातों रात आप पक्का घर प्रोवाइड करें, वो इस योजना का लाभ लेकर के अपने घर को पक्का करवा सकते हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया, इस वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया। अगर आपका पास कच्चा घर है, पक्का घर नहीं है तो उसको आप, लेकिन देखिए इसमें सोशल बेनिफिट देखिए, आप लॉन्ग टर्म में जब कोई क्राइसिस आता है, वेदर रिलेटेड कुछ भी रिलेटेड जब क्राइसिस आता है, तो सरकार का मूल तौर से, अब जैसे हमने देखते हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल का कुछ हिस्से में साइक्लोन आ रहा है, गुजरात में अभी साइक्लोन इस साल आया हुआ था, बहुत भयंकर साइक्लोन आया हुआ था। तो इसमें 50 से 60% लोग जिनको सबसे बड़ा नुकसान होता है वो उनके पास कच्चे घर है। तो सरकार के लिए भी एक बहुत लॉन्ग टर्म कॉस्ट है। हर 2 साल 3 साल में साइक्लोन आना, ये कच्चे घर उनका खत्म हो जाता है, फिर उनको रिहेबिलिटेट करना, इन बेचारों को जिनका
घर वर जो था रातों रात वो लोग रोड में आ जाता है, हाईवे में रहता है वो लोग टेंट में जी। तो उन लोग को रिहेबिलिटेट होने में टाइम लगता है। तो वहां पे भी आप देखिए जब उनका पक्का घर मिलेंगे तो ये रिहेबिलिटेशन कॉस्ट जो है और साथ में एक ह्यूज इनसिक्योरिटी जो इस वर्ग का लोगों के लिए वो भी दूर हो रहा है। तो ये मानता हूं मैं एक सोशली इट्स ऑल्सो ह्यूज जंप जो मैं मानता हूं भारत में होने वाला है 2022 तक। Jayanta, before we take more questions, a small break in which we'd like to inform our listeners. Listeners, you are listening to Money Matters on our News on AIR official YouTube channel. You may ask questions in the comment section of the YouTube channel and through our email ID moneymatters.air@gmail.com. मनी मैटर्स सॉरी प्लीज मनी मैटर्स में आपका फिर से स्वागत। और आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। हम श्रोताओं को यहां एक बार फिर याद दिला दें, कल इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पर। पॉल, आप कुछ सवाल करना चाह रहे थे? मेरा प्रश्न ये था जयंता से, जयंता, इज देयर ए प्रिफर्ड सेक्शन ऑफ whether it is economic group or strata of people who come under the Pradhan Mantri Awas Yojana? Is there any kind of preferred category? See, as I said, it's completely aligned with the socio-economic census which the government has created. And obviously, it's a simple logic that, if you're looking for housing for all, it's important at least the slab from 0 to 18 lakhs of income level, they should be catered to. And we also know that the way and the rate at which our cities are growing, there is a huge stress on the urban infrastructure, both in terms of providing, good quality housing with proper sanitation facility. And this is one thing which I would also like to stress on. See, the Pradhan Mantri Awas Yojana also focuses on good sanitation, electricity, and water availability and everything. And that's what they call the complete definition of a house. It's just not you create a house and you move on in life. It's just not a four-wall structure. Exactly. So it gives you a proper package where you have an access to not only a roof above your head, but also a good living environment. And that's what the main challenge and struggle specifically in our urban areas are at this point of time. We spoke of slums, but beyond slums, if you move a grade upwards, we also have colonies and communities which are not best in terms of accessible sanitation facilities, water facilities and things like that. And there comes a definition of smart cities, where you finally, in a long-term objective, you link these facilities. Now, this particular population, if you are talking of once again in the urban sector, has to be moved out from the slums. Now, overnight you can't move them out from the slums. You have to provide them these sorts of housings whereby they can get rid of, their existing, temporary structures or semi-permanent structures and move in. And as I said, there is a tectonic change which the government is trying to address. And this tectonic change, thankfully, is just not limited to an economic criteria, but also brings in a huge social objective and a social criteria. So that answers your question to a great extent, what sort of people, the government is focusing on. And as I said earlier, widows are being brought in, transgenders are also being brought in as beneficiaries. So to a great extent, this will also solve, the huge challenges which they had, whereby they were. So correct me if I say it is available for somebody who has nothing to someone who has even earning 18 lakhs. Exactly. यहाँ एक सवाल ये भी होता है जनता कि जिन्होंने मौजूदा होम लोन ले रखा है, क्या वो भी इस योजना के अंतर्गत जाकर के? नहीं, देखिए, ये नया घर के लिए आप अगर आप देखिए जिन्होंने होम लोन लेकर रखा है, जिनका चल रहा है, वो वापस आके उस घर को दोबारा अप्लाई, एज फार एज आई नो, हाउ कैन यू डू इट? तो ये नया स्कीम्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। स्कीम में अगर आपको अलग से कोई संशोधन आता है वो हमें नहीं पता भविष्य में, लेकिन ये जरूर है कि एग्जिस्टिंग बेनिफिशियरीज जो है उसमें लिस्ट में आपका नाम होना बहुत जरूरी है। जी। आप जब लोन ले चुके हो, आप ऑलरेडी एक अरेंजमेंट में हो, एक कॉन्ट्रैक्ट में हो अपना बैंक के साथ, वहां दोबारा जाके रिविजिट करना कि भाई अब मैं प्रधानमंत्री आवास, वो पॉसिबल नहीं है। So what are the documents, the main documents? See, there's a whole list of documents. I mean, as I said, Aadhaar is an important mandatory one to go in for a second round of, to reach the second page of the application process. Aadhaar you have to put, okay. And I don't think there is anyone left without an Aadhaar, Certificate of income, आय का प्रमाण पत्र। उसके बाद फिर जब आप सेकंड पेज में जाते हो, वहां पे काफी सारी चीजों का जरूरत पड़ता है। इनकम सर्टिफिकेट हो गया, या आपका कुछ डिटेल्स हो गया, जहाँ पे आप उस गांव के रिश्तेदार हो या वहां पे रहते हो काफी सालों से, उस तरह का कुछ डॉक्यूमेंटेशन का जरूरत बेशक है। लेकिन फाइनली जब आप लोन ले रहे हो तो बैंक का जो नॉर्मल नॉर्म्स होता है
वो आपको लिंक करना पड़ता है और साथ में जो भी रिक्वायरमेंट होता है आपको बैंक्स को आपको पूरा करना पड़ता है। जी, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये कि इस योजना के अंतर्गत अगर लोन लेता है कोई तो उसको कितनी ब्याज में सब्सिडी मिलेगी? देखिए, वो निर्भर करता है किस स्लैब में वो ले रहा है। 6.5% तक ब्याज भी अवेलेबल है जी। अगर आप मिडिल इनकम 1 में हो तो आपको एक सब्सिडी मिलता है, अगर आप मिडिल इनकम 2 में हो तो आपको अलग से मिलता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैक्सिमम सब्सिडी एलिजिबल अंडर फॉर एग्जाम्पल मिडिल इनकम ग्रुप 1 में 2.35 लाख जी, मिडिल इनकम ग्रुप 2 में इट इज 2.3 लाख, थोड़ा सा कम, 5,000 रुपए तक कम है और डिपेंड करता है किस स्लैब में आपको। जैसे जैसे इनकम ग्रुप बढ़ता जा रहा है सब्सिडी कम होती है। कैटेगरी में हो तो आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिल रहा है, जहाँ पे 1.2 लाख भी मिल सकता है, 1.6 लाख भी आपको सीधे मिल सकता है। ये निर्भर करता है आपका लोन का अवधि कितना है, लोन किस रेट में आप ले रहे हो, लेकिन ये स्कीम आपको मिलेगा बेशक। और 20 साल तक आपका एलिजिबल है। कोई अगर 25 साल का लोन उठा रहा है, कुछ बैंक्स 25 साल का भी लोन दे रहे हैं, तो वहां पे आपका फिर एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, कोई लोग कम लोन उठा रहा है या अगर ज्यादा लोन उठा रहा है तो ऐसे भी स्थिति होता है, तो वहां पे सरकार बोल रहा है कि हम जहां तक आपको छूट दे रहे हैं वहां तक आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा, उसके बाद बैंक का नॉर्मल रेट्स रहेंगे। तो ये नहीं कि आपका पूरा लोन का ऊपर आपको अलग से एक छूट मिलेगा, ऐसे बेशक नहीं है। Jayanta, before I ask you a question on subsidy of interest, I want to ask you this question, that let us say I'm applying for the loan and my son is also starting to work. Can he also apply? No, there is from one family. See, typically he can apply if he is a separate family. Okay. And he's buying a house for the first time. Family? See, see, typically what happens is when you apply, you're supposed to give the details of all your family members who are staying with you. So, that's how. Aadhaar number of all. Yeah. Okay. And then what also happens is you can't have a house under your name previously. Okay, that is a criteria. So that is also criteria. Now, if he is applying and if he is a first-time applicant and if he is falling into those categories whereby he doesn't have a house, he doesn't have a pakka house and things like that, so obviously he is eligible. But as I said, it's not overnight that things happen. It's not that if you are applying right now and the next month your son is getting a job and he is also employed. But it's your income which will be catered to, or your wife's income can also be added to it. Okay, there is this something called credit-linked subsidy scheme that you talked about initially. You did talk. Can you tell us how long does one have to wait for this home loan approval in this credit-linked subsidy scheme? See, under the CLSS, first your name has to be there and you have to be eligible for this CLSS to come in. Same, you go through the forms, those two. Exactly. Okay. And then you obviously, when you go to the bank links your their overall loan portfolio. And the good thing is, as I said, both PSU and private banks are offering loans, home loans to you. And that's where they link it. Because what happens is the government pays for the remaining part and that's how the subsidy is offered. So I do go only to the bank or do I have to go to any other nodal agency? No. I think the bank will work it out to your whole home loan. So it's a one link it, it's a one window. You don't have to run around anywhere. Okay. Once your name is there in the list, you are an approved beneficiary and the bank will take care of in terms of how to, and then there is also a beautiful, most banks in their web page have detailed guidelines of the PMAY process. Okay. So that's another thing. Go to any private bank web page. They will have a detailed PMAY process and you can follow that process to avail of this. But I'm assuming it's mostly the urban customers who will be accessing private banks to understand the process or not our village friends. Okay, if I ask you this question, I have a small business. Can I still avail of this Pradhan Mantri Awas Yojana? See, you have to follow to the income criteria. As simple as that. So I can take a loan. As I said, if you're following in the income criteria and if the government is linking it with your SECC census, as I said, the socio-economic census is also aligned to this. Okay. If you follow to that, obviously you'll be, it's not like you just have an income criteria. It has to be linked with the SECC criteria also. And is it very complicated, this adjustment of the subsidy? No. It's not that you have to go and work that subsidy out. It's a plain simple process and the banks are working out over time in terms of giving you this. Okay, thanks. जी, कुल मिलाकर के काफी महत्वाकांक्षी योजना है और अपना घर अगर चाहिए तो हमें इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में जरूर अप्लाई करना चाहिए। बहरहाल जयंता, कार्यक्रम में आने और हमारे श्रोताओं को इस बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। बिफोर वी क्लोज, a reminder on tomorrow's topic of discussion. Tomorrow's Money Matters topic is Pradhan Mantri Mudra Yojana. And with that, listeners, thank you for listening to Money Matters. Goodbye.